Hello student, welcome you back in this physics video. Today's video we will learn about some of the term which is related to circular motion such as angular displacement. Thereafter we will learn about angular speed and angular velocity. But before starting to this we should to learn over here what is this circular motion. So we will say that the motion of a body along this circular path. So this is said to be circular motion. Okay, if a body moves in this circular path, so its motion is known as circular motion. So example that we can have this nucleus of the atom is positive and that electron are revolving around it, so these electron are having circular motion. And we can have the example that sun is the center of our solar system and all other are going to revolve around this one, so they are going to have their this circular motion. Similarly that fan is having circular motion. So now over here that what is the meaning of angular displacement? Let us to define it first. Angular displacement. So here we are supposing that it is the fixed point of that circular path, so let it be O, and the body is at this position A. So the radius of this circular path, it is R over here. So this body when time is 0, so it is at A and it start to move along this curve, along this path. So it goes from A to B. So its two positions are going to form an angle with the center of this circular path. So this angle which is formed by its two position with the center, it is said to be angular displacement. This is over here angular displacement. So this angular displacement is given by theta. Now there we are getting AB. It is a small part of this circular track. Therefore that angle in this situation, angle will be given as that of arc upon में radius. So here arc means वो small part है उस circular path के ऊपर जो travel किया गया. So it is AB and upon में radius, so it is OA. So the of that circular path it is R. And if we talk about of this angle unit, तो एंगल के जो यूनिट है हमारे पास वो रेडियन के अंदर आते हैं, इसको रेडियन में मेजर किया जाता है. ठीक है, और दूसरा मेजरमेंट इसका डिग्री में आता है, तो इसके स्टैंडर्ड जो है वो रेडियन में होंगे. और रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री होगा और डबल ऑफ पाई जो है वो 360 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट ऑफ इट्स डायमेंशन, so it is dimensionless actually. This is dimensionless quantity that we come to know. There are the 7 fundamental plus 2 angle, so that one angle it was plane angle. So this is plane angle over here. Okay, so which is formed by that the small part of the arc with the center, so it is plane angle and therefore the plane angle will not have any dimension, so it is dimensionless quantity. Now the next thing over here that what will be the angular speed. Second thing that we should to learn over here, it is angular speed. As already in case of linear motion we have discussed over there angular speed, तो वहाँ पे हमने linear speed बोला था. ठीक है, जो मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट पाथ था तो उसमें हम क्या कहते थे दैट इट इज़ डिस्टेंस अपॉन में दिस टाइम, how much distance and how much is that time taken to cover this one. Now over here we are looking कि यहाँ पर हमारे पास क्या करती है, ये जो बॉडी जब A से B जाती है तो उसने सेंटर के साथ जो था इसकी दो पोजीशन वो एक एंगल फॉर्म कर रही होती है. ठीक है, वो थीटा था जिसको क्या बोला था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो एंगुलर स्पीड होगी, सो दिस इज गिवन बाय दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में दिस टाइम.
So how much time it has taken for this angular displacement? As we were having linear speed, so that way we are having this angular speed. तो इसलिए angular displacement अपॉन में that time it has taken. Now we are looking कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो उसने ए से बी तक जाने के लिए सेंटर के साथ कितना बनाया था, थीटा, ठीक है, और कितना टाइम लिया उसने ए से बी तक जाने के लिए. लेट हेयर इट रिचेस इन टाइम टी एट बी पोजिशन, ठीक है. तो इसलिए टाइम कितना ले गया, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, सो इट इज़ टी माइनस जीरो. सो दस वी कैन से दैट ये हमारे पास थीटा अपॉन में टी, दिस इज दैट एंगुलर स्पीड. Now over here, what the unit we should to use for this angular speed? We will find that student, एंगल जो है वो रेडियन के अंदर होता है और टाइम जो है वो सेकंड के अंदर आता है. तो इसलिए रेडियन पर सेकंड हमारे पास एंगुलर स्पीड के यूनिट बनेंगे, ठीक है. नेक्स्ट थिंग दैट व्हाट द डायमेंशन वी विल राइट फॉर दिस. सो एज वी आर नोन कि जो डायमेंशंस हैं उस एंगल के दैट आर नॉट अवेलेबल, ठीक है. ओनली किसके होते हैं, टाइम के. टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी, ठीक है, लेकिन वो भी किस में है, डिवाइड में. सो व्हेन वी विल टेक इट टू द न्यूमरेटर, सो वी विल गेट m0l0 t की पावर माइनस ऑफ 1, ओके. और इधर दैट सिंपली यू कैन राइट दिस एज t माइनस 1. सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ दैट एंगुलर स्पीड. नाउ द नेक्स्ट ओवर हेयर दैट एंगुलर वेलोसिटी. अब हम बात करते हैं स्टूडेंट एंगुलर वेलोसिटी क्या हुई. सो वी विल फाइंड दैट एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है. मैग्नीट्यूड क्या होगा, एंगुलर स्पीड का, एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी जो मैग्नीट्यूड है दोनों के वो इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड, ओके. सो डिफरेंस इज देयर. जो एंगुलर स्पीड थी वो स्केलर थी हमारे पास, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर है, ठीक है. तो इसलिए हमने क्या किया, उसके ऊपर एक वेक्टर यूज़ किया गया, ठीक है. सो हाउ वी विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस एंगुलर वेलोसिटी. तो एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन विद डायरेक्शन. सो फॉर दिस पर्पज लेट अस टू सी दैट वन. जैसे ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है स्टूडेंट, दिस इज द सर्कुलर पाथ एंड इट इज़ द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ. सो हेयर दैट this is the position, initial position at A, okay. Now this body it moves from A to B in this circular path, so therefore it has moved in एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है. कौन से डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में. तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट विल एक्ट अलोंग दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ये क्या होगा, उस लाइन के अलॉन्ग एक्ट करेगी जो इसके सेंटर से पास करती है, ठीक है. तो इसलिए हमारे पास दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट एंगुलर वेलोसिटी. सो वी विल फाइंड दैट ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये क्या कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग है, ठीक है. सो देयरफॉर दिस इज आल्सो नोन एज दैट एक्सियल वेक्टर. दिस इज एक्सियल वेक्टर. तो एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जो अलॉन्ग द एक्सिस एक्ट करते हैं उनको एक्सियल वेक्टर बोला गया था, ठीक है. और इसकी जो डायरेक्शन है हमारे पास यहाँ पर वो क्या बताई की है, दिस इज अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन. नाउ सी दैट यहाँ पर तो आपको बोला गया इट इज़ गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज. इफ़ इट इज़ गोइंग टू बी इन क्लॉकवाइज, जैसे ये हमारे पास यहाँ पर ए पोजिशन थी, बट नाउ इट गोज इन दिस वे एंड इट रीचेस टू दिस बी पोजिशन, ओके. सो दिस टाइम दैट द डायरेक्शन विल बी इन डाउनवर्ड. तो अब हमारे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एक्सिस, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डाउनवर्ड एक्ट करेगी. Now the next term which we are going to learn, it is of about that fourth term is this time period. So time period it is given by that capital T. So time period mean to say that as the body is going in this circular path, so the time taken for one complete round. तो जैसे ये बॉडी जो है यहाँ A से स्टार्ट करती है, दिस इज द सेंटर and this is the A point. So the body start from A and once again reaches at A. So there is one round,
Okay, so that time taken for this one round, it is said to be time of period, time to complete one round. So if we talk about of its unit will be in second, and if we talk about of its dimension, so dimension will be that of t, dimension will be t over there. Now how this angular speed and time period is related to each other. तो जो एंगुलर स्पीड और हमारे पास टाइम पीरियड है वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, ठीक है. सो वी विल फाइंड दैट फॉर वन कंप्लीट राउंड, जैसे हम फॉर वन कंप्लीट राउंड, तो जब स्टूडेंट ये एक कंप्लीट राउंड करता है, ठीक है, तो उस वक्त जो एंगुलर स्पीड दैट इट इज इक्वल टू दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में दिस टाइम, ठीक है. सो दिस इज द फार्मूला ऑफ दैट एंगुलर स्पीड. सो वी आर सेइंग फॉर वन कंप्लीट राउंड, तो एक राउंड में कितना मूव किया उसने. सो दिस इज 2 पाई इन रेडियन, इट इज़ 2 पाई, और इफ वी विल से इन डिग्री इट इज़ 360 डिग्री, ठीक है. तो इसलिए एक पूरे राउंड के अंदर कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई उसकी 2 पाई. एंड हाउ मच इज द टाइम टेकन फॉर दिस राउंड. सो ऑलरेडी भी सेड दैट एक राउंड के लिए जो आप टाइम लोगे वो टाइम पीरियड होगा. ओके, सो दिस इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी. So this is that relation of angular speed and this time period. And here one more term we are going to define. This is said to be as frequency. So frequency means number of complete round in 1 second. तो 1 सेकेंड में आप कितने कंप्लीट राउंड करते हो, ठीक है. So therefore it is said to be your frequency. For example, if you complete 10 round in 1 second, then your frequency will be 10 hertz, ठीक है. तो next over there, if you will complete 2 round in 1 second, so your frequency will be 2 hertz. Okay, so over here this frequency is given by that number of complete round अपॉन में दैट टाइम टेकन, जो टाइम हमारे पास होगा, ठीक है. इफ़ आई विल टॉक ओवर हेयर अबाउट ऑफ दिस फॉर वन राउंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक. इट इज़ टी, टाइम ऑफ फ्लाइट. एक राउंड के लिए कितना टाइम लेगा ये टी, टाइम पीरियड के इक्वल लेगा, ठीक है. तो इसलिए फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टी. सो दैट मीन्स ओवर हेयर आई कैन आल्सो राइट दिस वन एज it is 2 pi f. So angular speed is in relation with that of linear frequency, and the units of this frequency it is going to be hertz, hz, unit are hz. Okay, so thus we got over here these some of the terms which is related over here with the circular motion. So thanks for watching this video. Have a great time.